یہ بات رکھی ہے چنگیز صاحب نے, افضل عارفات صاحب نے, باقی دوستوں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ لی. ابھی میرے خیال میں ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا, ہم یہاں پر کسی عام سائل یا عام آدمی کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, نہ ہم کسی کے سامنے کوئی تقریر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر سارے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ وکلا ہیں کہ وہ خود عدالتوں کے اندر بیٹھ کر کے, کھڑے ہو کر کے عدالتوں میں وہ کیسز کی پیروی بھی کرتے ہیں, بار اینڈ آگے آرگومنٹس بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر آرگومنٹس کے بیسس پہ بات ہونی چاہیے, یہاں پر وہ لاجک کے ساتھ بات ہونی چاہیے. میرے خیال میں ابھی وہ وقت نہیں رہا کہ ہم ایک سمپل نعروں کے حوالے سے. ریکارڈ کی تصدیقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں اگر آپ کے سامنے یہاں رکھ لیتے ہیں, رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکھ کر کے آپ لوگ آپس میں بھی ڈسکس کر لیں. یہاں پر جو آپ کے سامنے جو پاسٹ میں کیبنٹ ہے یا پاسٹ میں جو گزرے ہوئے کیبنٹس ہیں اور جو موجودہ آنے والے ہیں, اس کے اندر یہ سارے سوالات جوابات رکھنا ہوگا. جس طریقے سے چنگیز نے کہا کہ ہماری سیاسی نظام کو جس طریقے سے پلوٹ کیا جا رہا ہے, ہر ادارے کے اندر اسی قسم کی پولوشن جو ہے ادارے کو پلوٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ادارے کے اوپر خاص کر جو بار کی انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے یہاں پر بھی اس قسم کی چیزیں, یہ یہاں پر اگر میں بیٹھا ہوا ہوں یا جو ہمارے قابرین ہیں, ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے, لیکن وہ اتنا رول نہیں ادا کر سکتا جتنا بیسک رول آپ لوگوں نے ادا کرنا ہوگا. وہ رول آپ کو کیا ہے؟ وہ آپ کا اپنا ووٹ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو صحیح انداز میں استعمال کر کے اگر آپ صحیح ریپرزنٹیشن لاؤ گے تو آپ کے آگے یہاں پر پوزیشن جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. اس آسانیوں کے پیدا کرنے کے لیے پروفیشنل پینل نے جب سے بات کیا, اگر پروفیشنل پینل کی بات کرنے سے اس سے پہلے 2016-15 میں یہ بن چکا ہے. پہلا جو ہم لوگوں نے الیکشن لڑا تھا یہ 2015 میں, اور 16 میں جب ایک ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا 8 اگست کا, اس میں ہمارے تقریباً سارے خبرین چلے گئے تھے, 56 کے قریب شہدا ہو تو آپ کے سامنے ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ چیز آپ لوگوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے نظر میں نہیں ہوں گی تو آگے بڑھنے کے لیے میرے خیال میں بہت سی مشکلات ہیں. چاہے میں جو بھی باتیں کر لوں, ہمارے قابل جو بھی باتیں رکھ لے گا وہ میرے خیال میں معنی نہیں رہتا. معنی اس وقت رکھا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر, باتوں کے اوپر سوچ سمجھ کر کے فیصلے کریں. اس 8 اگست کے واقعے کے بعد, اس واقعے کے بعد جو جتنی بھی وہ چیزیں ہوئی, تباہی ہوئی, اس کو سنبھالا کس نے ہے؟ وہی پروفیشنل پینل. آج تک اگر سنبھالا گیا ہے یہ پروفیشنل پینل نے ہی سنبھالا. ان کی شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چھوٹی موٹی بات. ابھی اگر ہمارے 56 شہدا ہے, 56 شہدا کے تقریباً کوئی 150 کے قریب جو ان کے بچے ہیں آج جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ CIT میں پڑھ رہے ہو, چاہے وہ لاہور گرامر میں پڑھ رہے ہو, چاہے گریجن میں پڑھ رہے ہو, ان کی جو ٹوٹل اسکول کی جو وہ ہے ٹیوشن فیس ہے وہ وہاں سے ان کو مل رہے. تو ہماری آنرشپ یہی تھی کہ ہمارے آبائی اگر آج درمیان میں ہو, بے شک ہم اپنے ان کے خاندانوں کو وہ شہدا جو ہیں واپس نہیں کر سکتے, نہ وہ محبت دے سکتے ہیں, لیکن ایسنس آف رسپانسبلٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا احساس ہے کہ ہم اپنے جو گئے ہوئے دوست ہیں اگر ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکے, کم از کم ہمارے لیے یہ اوپر لازم ہے کہ ہم انہیں ایجوکیشن دے دیں. میرے خیال میں آج تک ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ کوئی بھوک سے مرا ہے. میرے خیال میں کسی نہ گاؤں میں نے دیکھا ہے, نہ آپ لوگوں نے کوئی سنا ہوگا. یہ ضرور سنا تھا کہ میرے خیال میں اگر کسی غریب کے بچے نے ایجوکیشن چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے, اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ نہیں, اگر یہاں پر ہم بار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور یا بار کی سیاست کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک دوست ساتھی جو ہمارے ساتھ اسی کچہری کے اندر چلتا پھرتا تھا, اگر ان کے بچے اسکول چھوڑ کر کے, ایجوکیشن چھوڑ کر کے, تو وہ سب سے پرائم ڈیوٹی ہماری تھی. پھر دوسری بات یہ بتا, آپ یقین نہیں کریں گے, میں بلوچستان بار کونسل کا ممبر جب بنا ہوں یا اس سے پہلے جب پریکٹس میں آئے تھے, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو وکالت کے نظر سے یا وکیل کے حیثیت سے دیکھا نہیں جاتا. آج آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں, فخر کے ساتھ کہتا ہوں, آپ لوگوں کو وہ حیثیت اور وہ عزت مل رہی ہے جو میرے خیال میں کسی جگہ پہ بھی نہیں. میں بھی پورے پاکستان میں سندھ میں بھی گھما ہوں, خیبر پختونخوا میں بھی گھما ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے, خیبر پختونخوا بار کونسل اور سندھ بار کونسل وکلا کو پر لائف ٹائم میں ایک مرتبہ ان کو میڈیکل منتھ میں 25,000 روپئے دیا. یہاں پر میرے خیال میں ہم کسی کے نام نہیں لیتے. یہی بلوچستان بار کونسل آپ لوگوں کو یہاں پر اس طریقے سے بھی ہوا ہے, کسی کو 2 لاکھ روپے بھی ملا ہے سیریس معاوضے کی صورت میں, کسی اور کے حوالے سے بھی
कि बार कौंसिल की कंट्रीब्यूशन की। किसी बार कौंसिल ने यहाँ तक किसी वकील के लिए, अपने वकीला के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, और ये प्रोफेशनल पैनल ने ही वहाँ पर मुख्तलिफ मौक़ों में मुख्तलिफ ट्रेनिंग के मौके फराहम किए गए। क्या ये पहले नहीं किए जा सकते थे? क्या ये पहले जो जितनी भी लीडरशिप उनके साथ थी, बहुत से लीडरशिप यहाँ से चले गए, जो जिंदा है उनसे ज़रा सवाल भी तो कर ले। हम ये चाहते भी हैं कि आज अगर आपके सामने खड़े बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप सवाल कर सकते हो। 8 अगस्त के वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ, कभी कभी मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, ये जो हमारे वकला के, वो कहता है कि वकला के लिए क्या कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ, जो भी जाकर के चैलेंज करता हूँ कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के तवज्जुह से जो आपको लायर स्किल डेवलपमेंट की शक्ल में जो आपको पैसे मिल रहे हैं, बाहर जो लड़के गए हुए हैं, तकरीबन इस वक्त बलूचिस्तान से PhD के लिए, LLM के लिए और जो बार एटला या GDL के लिए गए तकरीबन 55 के करीब लड़के। अभी अगर वो 55 मेरे प्रोफेशनल पैनल की या हमारे जो जिम्मेदारी तो इतना ही बनती है कि मैं आपको एक मौका दे दूं, पर स्टूडेंट जो है तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। आप मुझे बता दें कि कोई बाप या कोई फैमिली अपने बच्चे के ऊपर इतने एक्सपेंडिचर करने के बाद क्या वो ये तवक्को नहीं रखता कि वो आकर के घर को संभाले, घर को अगर नहीं संभाल सका अपने आप को संभाले? क्या ये नेचुरल नहीं है? अगर मैं यहाँ पर और ये प्रोसेस इन 55 लड़कों के यहाँ तक महदूद नहीं है, और आप लोगों की बरकत से, आप लोगों की काविशों से, जब आप लोगों ने इस किस्म के लीडरशिप को चुन करके वो स्कीम जो पहले गवर्नमेंट की तवज्जुह से जो 8 अगस्त का जब वाक़या हुआ था, हमें 25 करोड़ रुपए दिया गया था, हमने वो 25 करोड़ रुपए को 15 करोड़ रुपए पे नहीं किया कि उसको कम करवा करके या उसका इसका यूटिलाइजेशन करवा करके। हमने यहाँ अभी तक तकरीबन 42 लड़के भी भिजवा चुके हैं, और उस 25 करोड़ रुपए का जो फंड है उसको हम लोगों ने इनास करके 60 करोड़ रुपए पे लेकर गए। क्या ये चीजें आप लोगों के सामने अगर नहीं है, अगर इसके बावजूद भी ये चीजें कंसिडरेशन की तरफ नहीं जा रहा, मेरे ख्याल में फिर तो एक ही चीज रहता है कि मैं हर एक की ख्वाहिश है और यार की कोशिश है कि मुझे सेटिस्फाई कर ले, मेरे जात के लिए कोई कर ले, वो हमारी बस का काम नहीं है। ये क्लियर होनी चाहिए हर एक एग्जाम में, जहां पर आता है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरहून मिन्नत से और आप लोगों की काविशों से मैं रिसेंटली लगा हुआ हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, पिछले गवर्नमेंट के साथ एक खासी अमाउंट अगर वो मैं फाइनलाइज कर दिया था, ये आपके साथ कमिटमेंट करूंगा, वादा करूंगा कि ये वो स्कीम है जो अभी हमने जो शोधा के बच्चों के लिए चल रहा था, अभी एक दूसरा स्कीम हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे कि खुदा न खास्ता अभी हमारे साथ कुछ वकला का हुआ है इंसिडेंट, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसका हमारी जो हब का अभी रिसेंट रिपोर्ट हुआ था, क्या हाँ मुजीब रहमान साहब बहुत हुए हैं। अभी हमारे एक भाई यहाँ पर जो है उसके छोटे बच्चे जो हैं आपका उसका जो अबूजर, उनके बच्चों की एजुकेशन फीस के हवाले से हम ये कवर अप करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे दे, हम ये नहीं चाहते, लेकिन अगर इस किस्म के मौके पे अगर उनके बच्चों को केयर हम नहीं करेंगे, ये बार नहीं करेगा, आप नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? उनके लिए भी हमारी ये ख्वाहिश होगी कि अभी उनकी एजुकेशन फीस भी हम उनसे कवर अप कर लें, और सीरियस बीमारी की सूरत में हम उसको इलाज मालिजे के लिए उस वकील को एक सफिशिएंट अमाउंट दे सके। एक नया फंड हम जनरेट कर रहे हैं फाइनल स्टेज पे इंशाल्लाह। आप लोगों को मकसद ये बताने का ये है कि वो चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग जो इस किस्म की चीजें कर लेते हो कि लोगों को मायूसी फैलाने के बजाय सिर्फ इतना बता दें कि जो नेगेटिव बात अगर आपके कानों तक पहुंच जाता है, वह आप उसकी सर्कुलेशन इतना तेजी से कर लेते हो कि सारी दुनिया को पता चल जाता है। जो आपकी पॉजिटिव बात अगर आप हम के सामने रख लेते हैं, उस पॉजिटिव बात पे मेरे ख्याल में न कोई आप छह के ऊपर डिस्कशन करते हो, ना आपस में डिस्कशन करते हो, न इतना एक दूसरे को बताते हो कि यह एक अच्छी स्कीम जा रहा है, इसके लिए मुझे एक टीम बनाना चाहिए, क्या एक साथी चला जाए। अभी ये स्कॉलरशिप जो है आप लोगों के लिए, न सलीम लाशारी स्कॉलरशिप पे जा सकता है, न सलाउल्लाह बाबकी साहब जा सकता है, न कमाल खान साहब जा सकता है, न गनी साहब जा सकता है, न मैं जाऊंगा। लेकिन ये आपके लिए, अगर आप उसके बावजूद उसकी तैयारी नहीं करते हो और इस मौके से फायदा नहीं उठाते हो, तो मेरे ख्याल में ये नहीं। अगर बात ये है जो गए हैं उसे हमारी ये एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए, और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी है, और मैं बात भी करता हूँ
जो गए हैं, अगर उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए पे खर्चा हो रहा है, वो 1.5 करोड़ रुपए वो शोधा जो आप हमारे 8 अगस्त के जो शोधा है उनकी खून की बदौलत हम लोगों को मिला है। उस खून का हिसाब इस तरीके से नहीं है कि अगर आप गए हो तो फिर आकर के इस जमीन के ऊपर आपके ऊपर हक बनता है कि आप अगर यहाँ से रिसोर्सेज ले करके वहाँ पर चले जाते हो, यूरोप जा करके वहाँ पर अच्छी एजुकेशन माहौल भी मिल जाता है, आप सैर व तफरीह भी करके चले जाते हो, आप अपने पैसे बचत भी करके आते हो, लेकिन वापस आकर के इस फील्ड के अंदर अगर आपकी कंट्रीब्यूशन और आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं होगी, मेरे ख्याल में फिर ये बार इस तरीके से नहीं बनेगा। बार बनाना आपकी जिम्मेदारी है, लोग आपको लीड दे करके दे सकते हैं, रास्ता बना करके दे सकते हैं, उस पर अमल करवाना ये आप लोगों का भी फरीजा बनता है। इलेक्शन के हवाले से बात आपके सामने रखेंगे, हमने हर वो साथी को मौका दिया हुआ है कि वो आकर के डिलीवरी कर, बार है, आज़ाद है, बार इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है, आप लोगों के सामने है। अगर जो भी मेहनत करेगा वो इस बार के अंदर स्पेस बनाएगा, जिसने भी अगर ना बनाया हुआ है बार के अंदर प्रैक्टिस के अंदर भी एक फील्ड ओपन फील्ड है। ये नहीं हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीजें हैं, हमें एक दूसरे के ये जो यंग प्लेयर्स कभी कभी हम जब बात करते हैं हमें उनको इंडिपेंडेंट पे बनाना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है। कि अगर मैं ऐसी चीजों के ऊपर इसको इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि कल वो प्रैक्टिस करने के बजाय फोकस करने के बजाय वो एक मामूली सी अमाउंट के लिए बात करते हैं, मेरे ख्याल में नहीं। मैं आपको ये ताकीद करूंगा, आप कम्पीट कर लो, मेरे साथ कम्पीट कर लो, सलीम साहब के साथ कम्पीट कर लो, फील्ड के अंदर भी कम्पीट कर लो, जहां पर भी आपको अच्छे। हम उस लड़के को अप्रिशिएट भी करते हैं, उस स्टूडेंट्स को, हम उसको एडवोकेट को जो हमारे मुकाबले में खड़े होकर के अच्छे तरीके से केस भी रिप्रेजेंट कर ले और अच्छे तरीके से जाकर के हायर एजुकेशन के लिए भी चले जाए। जहां पर आप लोगों की सरपरस्ती होगी, सरपरस्ती के लिए हम हाजिर हैं। हम ये सिर्फ इतना ही कहेंगे, अभी इस इलेक्शन के हवाले से जो कोयटा बार के इलेक्शन है वो ना था, ये नवंबर के महीने में हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट किया गया था। थ्रेट करने के लिए बार की पार्टीज बैठे थे, डिले हो गया, डिले नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए थे, लेकिन हालात के तकाजा है बहरहाल फिर कुछ मजबूरियां बन जाती। उस मजबूरी का नाजायज फायदा हम नहीं उठाएंगे, नहीं किसी और को उठाने की देने की कोशिश करेंगे, मौका देंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस हो, प्रोसेस जारी रहे और ये इदारे इसी तरीके से बनते रहेंगे जिस तरीके से हमारी ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो सवालात अभी लोग कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है अगर हमारे ऊपर, लेकिन ये इसका चेक एंड बैलेंस ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। पास भी आप लोगों के सामने सबका पड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर हमारे साथियों में से न कोई सेनेटर बना है, न कोई एमएनए बना है। हम इसी तरह आप लोगों की कम्युनिटी से निकल करके आप लोगों की बरादरी के दरमियान में से निकले जो थोड़ा बहुत डिलीवरी की हुई है। क्या ये सवाल नहीं बनता कि अगर इस किस्म की चीजें, इन सारी चीजों के बावजूद वो चीजें आज तक डिलीवरी नहीं हो रही, क्यों? आज अगर मैं बैठा हूँ, मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ, अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है बलूचिस्तान बार कौंसिल का मेंबर बना हूँ, 15 साल, इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर बना बैठा हुआ हूँ, ये तकरीबन अगर शामिल करके 20 साल के अंदर मैं 20,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन बार के लिए नहीं कर सका हूँ, या इस फोरम के तवज्जुह से, यानी 20 साल आप लोगों ने मुझे दिया है और वो रेसिप्रोकल में मैं आपको 20,000 रुपए किसी शक्ल में न दे सका हूँ, तो फिर मेरे नुमाइंदगी करने का हक बनता है? सवाल ये है। अगर ये सवाल, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने कहा लॉजिक के साथ बात करेंगे कि लॉजिक है, लॉजिक के साथ आप भी लॉजिक के साथ बात रखो, बिल्कुल चीजें होंगे आपके सामने, जवाब भी करेंगे, सारी चीजें आपको सेटिस्फाई भी करेंगे। लेकिन खुदा रहा ये जो इलेक्शंस के प्रोसेस में ऐसे लोगों को कर ले, अभी मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से अभी मैं गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकला के इस्लामाबाद एक हाउसिंग स्कीम है, आज तक पटे खचकार है, यानी 10 साल हो चुके हैं, लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर प्रेसिडेंट मुखालिफ ग्रुप कहा जाता है, दूसरा कैबिनेट दूसरे ग्रुप कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता। आप जो वकील के कलेक्टिव मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कम अज कम कुछ इस तरह की चीजों के ऊपर आपको भी यहाँ पर जो मसाइल है, अभी हमारे लिए आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे जो प्राइम ड्यूटी मेरी ये थी कि कम अज कम जो वकला के खासकर जो इलाज मालिजे के लिए या उनकी बच्चों की एजुकेशन क्या हो, वो मेरे ख्याल में हम कामयाबी के करीब हैं। 2 और चीजें हैं जो यंग लायर्स के हवाले से, वो कहते हैं कि ट्रेनिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि यंग लायर्स को इन चीजों के ऊपर फोकस कर लें कि वो ट्रेनिंग्स के लिए मौके हम प्रोवाइड करेंगे, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए ऑलरेडी मौका प्रोवाइड है,
वो लंदन जा कर के पढ़े, आए, इस फील्ड के अंदर कंप्लीट कर ले। ये किसी जगह पे भी नहीं, आपको मौका मिला है और ये प्रोफेशनल पैनल के तवज्जो से मिला है। ये प्रोफेशनल पैनल के जो मौजूदा बार कौंसिल या इससे पिछले बार कौंसिल के बॉडी के तवज्जो से है। ये वो चीज़ें जो आपके सामने हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी फिर आपकी कंसिडरेशन का या मेरिट का कोई और क्राइटेरिया है, फिर मेरे ख्याल में फिर वही एक बात आ जाती है कि हम इनफरादी जो सोच के मालिक हैं या इनफरादी मफादात, इनफरादी इंटरेस्ट की बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी की मुमकिन नहीं है। वो ये घर के अंदर अपने वालिदैन अपने बच्चों को भी इनफरादी तौर पर उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते या उसको उस लेवल पे वो मुतमईन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जहाँ पर जो इज्तिमाई मफादात की बात अगर की गई है या इज्तिमाई मफादात तक आज जितने भी काम किए गए, वो दावे से कहता हूँ कि प्रोफेशनल पैनल ने जो 15 से एग्जिस्ट कर रहा है या 15 से बना हुआ है, उसने ये डिलीवरी की हुई है 5-6 साल 8 साल में। ये 8 साल का आपकी जो प्रोग्रेस और ये जो कामों का तकाबली जायजा आप खुद 35 साल या 40 साल के कायदीन या उसके जो दड़बंदी से आप खुद कंपेयर कर सकते हो। उस कंपेयर करने के बावजूद भी अगर आपका फैसला ये है कि नहीं, जो करने वाले काम करने वाले लोग हैं उनको आपने अप्रिशिएट नहीं करना है, उनको आपने मौका नहीं देना है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जुल्म ज्यादती आप अपने साथ कर रहे हो, कोई और आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है, न कोई कर सकता है। अगर आप जिंदा हो और बाशऊर हो और शऊर रखते हो, तो मेरे हमारा शऊर के फैसले यही है कि आप उस क़यादत को या उस ग्रुप को मुंतखब कर लो जो आपके लिए फलाह व बहबूद के लिए काम किया है या काम कर रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी।